Rahim. Assalamu alaikum to all our viewers. This is our educational channel Learning Biology Online. I am Dr. Asad, and in this lecture of nutrition we will cover a very important aspect of plants, a very specific species known as those plants that attain energy through heterotrophic mechanism. By the end of this lecture you should be able to know what actually the insectivorous plants are, why they are known as the heterotrophic plants, how they obtain their nutrition from their surrounding environment. We will highlight each of their different features कि इनके जो overall structure होता है plants का, ये बाकी जो autotrophic जो plants हैं उनसे कैसे different होता है, and how they use different structures to attract their prey. So we can define insectivorous plants as those plants that obtain their inorganic food by digestion of the organic material. ठीक है, अब organic material में obviously तमाम ऐसे small size insects या animals आ सकते हैं जिनको एक दफ़ा ये जब entrap कर लें तो उसको फिर ऊपर digestive enzymes से जो है वो उसकी बॉडी को डिज़ोल्व कर लेते हैं, जिसकी वजह से दे आर एबल टू ऑब्टेन देयर ऑर्गेनिक फूड. ठीक है, अब एनिमल्स में स्मॉल साइज़ में ज़्यादातर स्मॉल साइज फ्रॉग्स आ जाते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स हैं दैट आर यूज्ड अप बाय दीज हेटरोट्रॉफिक प्लांट्स. So first of all we will start off with a species of insectivorous plants known as the Drosera intermedia, commonly known with the name of sundews. So these are such plants that have modified leaves that have basically tentacles present on them. ठीक है, नॉर्मली हमने जो लीफ का प्लांट्स के केस में स्ट्रक्चर होता है इसको भी अभी कवर करना है हमने when we will start off with the plant kingdom. लेकिन generally we have an idea of the leaf कि किस तरह से leaf vein वाला portion है, ठीक है, उससे डिफरेंट उसकी ब्रांचेस जो हैं वो एक्सटेंड कर रही होती हैं. लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो लीव्स हैं दे हैव स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स नोन एज टेंटिकल्स. ऑब्वियसली उनके ये जो स्ट्रक्चर है इट बेसिकली हेल्प्स देम टू ट्रैप द इंसेक्ट और स्मॉल एनिमल्स. ठीक है, नाउ देयर इज़ ऑल्सो प्रेजेंस ऑफ म्यूसिलेजिनस ग्लैंड्स ऑन दीज मॉडिफाइड लीव्स, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक स्टिकी फ्लूइड जो है दैट इज क्रिएटेड. ठीक है, तो जैसे ही इंसेक्ट जो है वो इन नीड ऑफ नेक्टर, जब भी वो नेक्टर की तलाश में जो है प्लांट की सरफेस के ऊपर या स्पेसिफिकली लीफ पोर्शन पे आके बैठेगा तो इट गेट्स स्टक टू दीज मॉडिफाइड लीव्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द सिक्रीशंस फ्रॉम द म्यूसिलेजिनस ग्लैंड. ठीक है, तो एक दफ़ा जब ये आके वहाँ पे कोई भी स्मॉल एनिमल या इंसेक्ट स्टिक कर जाएगा उसके सरफेस के साथ, तो नाउ दैट कैन बी यूज्ड बाय दीज प्लांट्स फॉर प्रे. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वाई एनी इंसेक्ट और स्मॉल एनिमल्स वाई दे गेट अट्रैक्टेड. ठीक है, सो दे आर ऑब्वियसली इन सर्च ऑफ नेक्टर, सो दे कम एंड sit on the surface of their leaves, and once they are stuck on the surface there is a release of certain digestive enzymes that basically help in digestion of such small organisms that are then used as inorganic source of food by by these plants. So we have a diagram over here जिसके ऊपर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले how the leaf portion of these specific plants it is composed of modified small tentacles. ठीक है, तो in search of this nectar the insect has come and attached to the surface. There is also secretion from the mucilaginous glands. ठीक है, अब जब ये एक दफ़ा आगे इस तरह से सरफेस के ऊपर एंट्रैप हो जाएगा by these tentacles, then there will be secretion of certain enzymes जिससे कि there will be dissolution of this organism and it will be used as food by this plant. Another plant that is known for its insectivorous capability is the Dionaea muscipula, that is commonly known as the Venus flytrap.
अब यहाँ पे भी हम देखेंगे कि इसका जो स्ट्रक्चर है स्पेसिफिकली लीव पोर्शन का, हाउ दैट इज़ मॉडिफाइड. सो यू कैन सी ओवर हेयर दैट द लीव्स दे आर in form of a bilobed structure. ठीक है, so now we will go through the diagram how does that bilobe structure looks like over here. So you can see the diagram over here. This is how the bilobed leaf of specifically this plant they look like. ठीक है, center में this portion that we will highlight now with a different color, this is the midrib. ठीक है, to which these two lobes of leaves are basically attached to each other. ठीक है, फिर उसके बाद आपको ये जैसे हेयर ब्रश के ब्रिसल्स होते हैं उसी तरह से आपको ये एक रो ऑफ ब्रिसल्स नज़र आ रही है एट द मार्जिन ऑफ ईच लोब. ठीक है, इसके अलावा जो ये सेंट्रल पोर्शन है दैट यू कैन सी इन रेड कलर, इसके ऊपर देयर इज प्रेजेंस ऑफ स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर. जब भी कोई इंसेक्ट दैट विल कम एंड अटैच टू द सरफेस, तो दीज आर सेंसिटिव टू द सेंसेशन. तो ये फ़ौरन उनकी सेंसेशन को जैसे ही फील करेगा तो ये जो बायलोब लीफ का स्ट्रक्चर है ये फ़ौरन से क्लोज हो जाता है. दैट अल्टीमेटली ट्रैप्स द इंसेक्ट इनसाइड एंड देन देयर इज अ रिलीज ऑफ एंजाइम्स जो कि उस एंट्रैप्ड इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर लेते हैं. ठीक है, सो यू कैन सी ओवर हेयर द बॉडी ऑफ दैट इंसेक्ट इज डीकम्पोज्ड बाय द एक्शन ऑफ सर्टन एंजाइम. सो यू शुड ऑलवेज रिमेंबर कि एक तो ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर मार्जिन्स पे हैं, देन देयर आर स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स. ठीक है, दैट आर वेरी मच सेंसिटिव टू एनी स्मॉल सेंसेशन. कोई भी चीज़ इसके ऊपर आगे बैठेगी तो फ़ौरन ये उसको डिटेक्ट करके क्लोज हो जाएगा एंड देन इट विल रिलीज इट्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स. Then we come to another type of insectivorous plants with the scientific name of Sarracenia purpura that is commonly known as the pitcher plant. अब यहाँ पे हम इसके नाम से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके जो लीव हैं दे आर मॉडिफाई इनटू अ हॉलो सैक लाइक पिचर. जैसे कि एक जग की शेप होती है जिसमें हम अक्सर पानी या डिफरेंट फ्लूइड्स को जो है वो डालते हैं. इसके अलावा जो पुराने वक्तों में जो एक मशकीज़ा इस्तेमाल किया जाता था पानी को स्टोर करने के लिए, उसकी तरह की इसकी शेप होती है. ठीक है, सो देयर इज़ सर्टन अमाउंट ऑफ वाटर ऑल्सो प्रेजेंट विद इन दिस मॉडिफाइड लीव दैट इज़ इन फॉर्म ऑफ अ hollow sac like structure, and then there is presence of small size stiff leaves in the inner surface of this hollow space. तो जब भी कोई जो है ऑर्गेनिज्म या इंसेक्ट इसके ऊपर आके इस सैक लाइक स्ट्रक्चर में एंटर हो जाता है तो देन इट इज़ नॉट easy for it to move out of it as it gets entangled into this hollow space. तो यहाँ पे आप इसकी शेप देख सकते हैं किस तरह से it is looking like a pitcher. ठीक है, the inner surface it consists of stiff hairs to which the insect is going to get entangled once it enters this space. ठीक है, उसके अलावा आप एक लीफ लाइक एक्सटेंशन देख रहे हैं इसी की पिक्चर की. ठीक है, ठीक है, तो दिस इज बेसिकली अ हुड दैट कवर्स पार्शली द ओपनिंग ऑफ दिस पिक्चर. ठीक है, सो एनी insect or small animal entering it gets entrapped and then there is secretion of enzymes that will decompose the organism and extract proteins and other nutrients that are required for energy in case of the pitcher plant. So this is the end of our lecture where we have discussed some of the very important insectivorous plants. उनके structure को हमने पढ़ा और फिर उनके किस तरह से स्ट्रक्चर जो है वो उनके फंक्शन को या न्यूट्रिशन में उनको फैसिलिटेट करता है. डू लाइक आवर वीडियो, शेयर इट विद अदर स्टूडेंट्स एज वेल. इन द कमेंट सेक्शन डू मेंशन इफ यू हैव any question relevant to the topics that we have covered in this video. Do not forget to subscribe to our channel. Click the bell button so you can receive updated notifications of our new videos on regular basis. Thank you very much.